Hello friends, welcome to Taxila School of Civil Services and welcome to in this session. And in this session, we are going to discuss about the 28th March Delhi current affair. And as you know, key current affair is really very important for us, and we should try to cover the dynamic portion. And when you will be able to cover the dynamic portion, automatically what you will be able to understand the static portion also. So that means for the better revision of a static portion, you should try to cover current affair also. So you'll be able to correlate a static portion with the current affair portion, dynamic portion. So that's why key current affairs is really very important. And before moving ahead, first of all, good morning, everyone. So let's start our discussion. And in this session, I will try to cover the top most 2 or 3 important topic, just like India pitch for United Nations Security Council reforms. Then India China look forward to stabilize ties. That means there was a 75th years of, you can say, India China relation. Then after that, we'll discuss about the Public Account Committee recommendation for GST regime like this. And then government submit a status report on deepfakes. And you'll also get our current affair compilation on our website. You'll get also daily MCQ. So please try to, utilize these things. And these things are free for you, so you can. Okay. So let's start our discussion with the first topic. You can see here the first topic, that is India pitch. Okay, India pitch for United Nations Security Council reforms. I already discussed so many times about this topic. Okay, but there was a news, so I have basically taken this topic from the, you can say, Economic Times. So we'll have to understand. So first of all, we should try to understand that this topic is related to what? General Studies Paper 2. Which portion? IR, International Relation, International Organization. Why am I discussing? First of all, India basically stresses the need for United Nations Security Council reform. Why? To achieve lasting peace in conflict situation. So basically, India, stressed so many times. And according to, you can say, Indian government, yeah, basically, according to India point of view, India wants what? Reforms. Reforms in Security Council. Reforms, in United Nation Security Council. United Nation Security Council. We'll discuss about this thing. And also, we'll have to understand what are the, you can say now, major highlights, key highlights. Okay. First of all, we already discussed about the India Peacekeeping Force. Okay. In maybe, you can say 10th or 8th March. Okay. And so first of all, if you talk about the important highlights, important, you can say now key points, yeah, key highlights. What are these? First of all, there is a, you can say now, India point of view related to peacekeeper security. Basically, key peacekeeper face threats from non-state actors. Non-state actor means what? Armed groups, rebellion, terrorist. Okay. So please try to understand that India talks about the peacekeeper security. So peacekeeper face different types of threats, and threats from, you can say na, non-state actor. Non-state actor means, you can say terrorist, okay, armed groups, rebellion, okay, like this thing. So basically, India underscored the need for their safety and demand accountability for crimes committed against them. So India focusing on what? You can say that there should be the provision for the security of peacekeeper. Okay, there should be provision for, you can say now, security. So okay, there should be security provision for peacekeeper. Because I told you that peacekeeper face different types of you can say that threats, and especially you can say now, especially from the non-state actor. Okay, just like you can say in Somalia, pirates, like this thing. Let's take an example. Okay, and then India also talked about the modernization. India basically focuses stress for incorporating advanced surveillance, communication system, and data analytics into peacekeeping efforts. And India support this by offering training through the Center for United Nations Peacekeeping. Okay, Center for United Nations Peacekeeping. So India talk about what? Modernization. Then you will be able to tackle the situation. Otherwise, what is happening? Let's suppose cyber crime is increasing. Okay, and if you are not able to update yourself, you'll have to face, you can say, a threat. You'll have to face challenges. So India talk about the usage of, you can say, modern technology. So India is focusing on modernization. Modernization for whom? Modernization for peacekeeper. Okay, so that's why India also, you can say, India supports, you can say, modernization through training and through the Center for United Nations Peacekeeping.
Okay. Then India also talk about the sufficient funding, educate funding. What? Educate funding. So India emphasizes the necessity of well-funded peacekeeping mission and ensuring resources align with their mandates. कहते हैं अगर आपका फंड ही नहीं होगा तो पीस कीपर कैसे काम करेंगे भाई, है ना? उनको अपनी एक जरूरत होती है. सो इंडिया स्ट्रेसेस द नीड फॉर एडुकेटली फंड, okay, funded and resourced peacekeeping mission with resource matching the mandates. Okay. And then India also talk about the inclusion in mandate formation. So there should be what? Inclusive mandate formation. So India urges the participation of troop contributing countries in shaping mandates to better adapt to evolving challenges. ओके तो इंडिया क्या कर रहा है, वो बात करता है कि इंडिया जो है फोकस कर रहा है कि देयर शुड बी इंक्लूजन इन मैंडेट फॉर्मेशन. बेसिकली इंडिया कॉल्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज in the mandate formulation process to adapt operation to new, you can say na, realities. Okay, so what are the challenges? Basically इंडिया क्या कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपका रिफॉर्म हो, और इसमें इंडिया जो फोकस कर रहा है खास करके जो पीस कीपर होते हैं, पीस कीपर जो है वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस थिंग. सो आप किसी न किसी सेशन में मैंने किया था, ये मार्च का ही है, जहां पे मैंने आपको बताया था कैसे फीमेल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, इंडिया के कितने पीस कीपिंग मिशन जो है अभी चल रहे हैं, कितना कब से स्टार्ट हुआ, सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को किसी न किसी वीडियो में. ठीक है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो पीस कीपर्स है उनका एक बेटर सिक्योरिटी हो. ठीक है, उनका जो है मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, देन एक बेटर फंडिंग होना चाहिए, जिस कंट्री में ऑपरेशन होगा उस कंट्री को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, दैट मींस इंक्लूजन इन मैंडेट फॉर्मेशन. सो प्लीज कीप इन द माइंड. नाउ for us we'll have to discuss, what we'll have to discuss, please keep in the mind, we'll have to discuss about the United Nations Security Council. हमें थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिस्कस करना है. देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट द नीड, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो सबसे पहली चीजें देखते क्या डाउट है सर, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पीस कीपर. देखिए जब पीस कीपिंग की फॉर्मुलेशन बात करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो पीस कीपर बहुत सारे कंट्री में जो है आपका गए हुए, बहुत सारे कंट्री में. ठीक, जैसे कि अगर आप बात कर लीजिए सूडान में, ठीक है, हुआ था. एंड देन जो है उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप देखेंगे कि एक टाइम जो श्रीलंका में भी आपका जो है गया हुआ था. ओके, तो इस ये सारी जो चीजें है ना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक, एंड देन जो है उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ ही महीने, एक महीने पहले भी न्यूज था इन सारी चीजों को लेकर के. अभी तो कुछ दिन पहले का, एक या दो दिन पहले का न्यूज है कि इंडिया ने पाकिस्तान को धो डाला है, ठीक है, कश्मीर के इशूज पे और पीस कीपिंग को लेकर के. सो ये थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. ठीक है, एंड उसके बाद एक चीज और भी हम लोग को जो समझना है, जब पीस कीपिंग की बात करते हैं तो पीस कीपिंग में जो क्या होता है कि किसी भी कंट्री में अगर वायलेंस चल रहा है, ठीक है, तो उसको वहां पे शांत करने के लिए फोर्सेस को भेजे जाते हैं. तो अभी भी इंडिया के बहुत सारे जो डिफेंस पर्सन है, ठीक है, वो पीस कीपिंग में जो है आपका काम जो है करते हैं. ठीक है, वहां पे वो काम करते हैं. ठीक, एंड देन जो है थोड़ा सा अगर आगे भी आप बढ़ेंगे तो आपको एक चीज ये भी समझ में आ जाएगा कि एक राज का सेन बहुत इंपॉर्टेंट, जो उनका नाम जो है रहा था, हाँ, 10 मार्च को या 9 मार्च को मैंने ये इसके ऊपर पूरा एक करंट अफेयर वाले में ही कवर अप किया हुआ है, प्लीज उसे एक बार आप गो थ्रू होइएगा. ठीक है, एंड उस टाइम जब हमारे जयशंकर साहब जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने बताया था कि एट द हार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी lies a commitment to peacekeeping rooted in dialogue, diplomacy and cooperation, and guided by the philosophy of Vasudev Kutumbakam and the belief that the world is one family. So India will continue to contribute meaningfully, okay, you can say meaningfully, to the cause of UN peacekeeping. तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है, किसी भी कंट्री में अगर वायलेंस होता है तो वहां पे शांत करने के लिए पीस कीपर को भेजते हैं, ब्लू हेलमेट जो है वो लगाते हैं. ठीक है, बेसिकली कि यूनाइटेड नेशन जो है 1945 में जो आपका जो है ये फॉर्म हुआ था. 1945 में यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1945, बेसिकली 24 अक्टूबर 1945 हम लोग कह सकते हैं, हाँ है 24 अक्टूबर 1945 में. और उसी टाइम से अगर देखेंगे तो हम लोग कहते हैं प्राइमरी गोल क्या था यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिश होने का, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और जब से ये बना है तब से यूएन पीस कीपिंग जो है एक वैल्यूबल टूल हुआ है
बहुत सारे कंट्री में जो है शांति जो है पीस को स्टैब्लिश करने को लेकर के। ओके, और इंडिया हैज बीन अ की कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी विद ओवर 2,90,000 पीस कीपर्स सर्विंग इन मोर देन 50 यूनाइटेड नेशन मिशन। 50 जो यूनाइटेड नेशन मिशन है उसमें से इंडिया के जो अभी तक अगर आप बात करोगे जो आपका 2,90,000 जो हमारे सैनिक जो है आपका यूनाइटेड नेशन के 50 मिशन में जो है आपका पार्टिसिपेट किया है। अभी भी करंटली 5,000 जो इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस के पर्सन है वो आप पीस कीपर के रूप में काम कर रहे हैं 9 एक्टिव मिशन में। ठीक है, और यूएन पीस कीपर जो है नोन एज ब्लू हेलमेट्स ऑल्सो। ठीक है, ब्लू जो है कलर वो शांति को बताता है इसीलिए। ठीक, और उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि बहुत सारे डिटेल में मैंने जो है आपका कवर अप किया हुआ था, तो प्लीज उसमें जाइएगा। बेसिकली इंडिया का यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग जो स्टार्ट हुआ इन 1948, इंडिया ने जो पहली बार पार्टिसिपेट किया इन 1948, व्हेन इंडिया participated in 1948, okay, and with the establishment of United Nations Truce Supervision Organization in the Middle East to monitor ceasefire, okay, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देन अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपको जैसे बहुत सारे हैं अभी भी जो गोलन हाइट्स में, ठीक है, इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था, लेबनान में, मिडिल ईस्ट में, साइप्रस में, साउथ सुडान में, वेस्टर्न सहारा में, सेंट्रल अफ्रीकन की जो रिपब्लिक कंट्री है वहां पे। तो ये ध्यान में हमें रखना चाहिए। ओके, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिकन कॉन्गो में, साउथ सुडान में, मैंने जैसे आपको बताया, लेबनान, लिबिया, ठीक है, सोमालिया, रवांडा, कॉन्गो, बहुत सारे कंट्री में जो है आपका इंडिया, कोरिया, बहुत सारे कंट्री, और खासकर फीमेल ने भी पार्टिसिपेट जो है आपका किया हुआ है, फीमेल का भी बहुत सारा पार्टिसिपेशन रहा है। ओके, सो आई होप सो ये क्लियर होना चाहिए अनाम का। नाउ थोड़ा सा हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो लेट्स डिस्कस बेसिकली कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो आपका क्या है। उसका जो अगर आप बात करोगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, व्हाट, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, and it was founded in 1945 under the United Nation Charter, under the United Nation Charter। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। हाउ मेनी? 15 मेंबर्स। ओके, हाउ मेनी? 15 मेंबर्स, जिसमें से 5 + 10 याद रखिएगा। 5 क्या है आपका? परमानेंट होगी। 5 जो है परमानेंट मेंबर्स, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, एंड परमानेंट मेंबर्स आर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, एंड 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो जनरल असेंबली के द्वारा जो उनको जो है क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है हर 2 सालों पे। ठीक है, हर 2 सालों पे। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स डिस्कस अबाउट why there is a need for reforms in the United Nations Security Council. This is important for us, basically for the mains exam. Okay, basically for the mains exam you will have to understand कि why there is a need for the reforms in United Nations Security Council, क्यों जरूरत है। okay, तो नीड की बात कर लेते हैं, क्यों जरूरत है भाई। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो करंट का जो कंपोजिशन है, अभी का जो बनावट है, ओके, करंट कॉम्पोजिशन। अब क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। जो मैंने बताया ना 5 + 10, तो जो करंट का कंपोजिशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ की रीजन, जस्ट लाइक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आपका जो है कंट्री है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। डेवलपिंग कंट्री में देखिए अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ब्राजील का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जर्मनी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जापान का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कितने सारे बड़े कंट्री हैं। ओके, तो जो अभी का जो कंपोजिशन है वो क्या है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और खास करके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन के लिए। देन जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो अनेबल रहा है क्या, कंफ्लिक्ट को दूर करने में। ओके, इन एबिलिटी टू टैकल कंफ्लिक्ट। ओके, जो कंफ्लिक्ट को टैकल करने में ये इनेबल रहा है। ठीक,
बेसिकली कि द एग्जिस्टिंग कंपोजिशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल का, ओके, वो उस कहते हैं ना, इनकैपेबल रहा है, वो रोक ही नहीं पा रहा है. So the existing composition of the council has demonstrated significant limitation in effectively addressing major international conflict. So this has undermined its credibility and hindered its core mandate of upholding international peace and security. ठीक है. अगर आप देखोगे तो अभी का जो बनावट है उस वजह से क्या उसके जो लिमिटेशन है, ठीक, लिमिटेशन मतलब क्या, वो कैपेबल ही नहीं है, वो इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करने के लिए काम ही नहीं कर पा रहा है. ओके, तो ये एक रीजन है. तो पहला रीजन करंट कंपोजिशन, दूसरा इनएबिलिटी टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट. ओके, एंड हुआ क्या है, 1945 के बाद से तो पूरे वर्ल्ड तो चेंज हो गया ना. पहले आपके जो है अगर देखोगे बाइपोलर था, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया. फिर 1991 से अगर हम देखेंगे तो आपका क्या हो गया कि यूनिपोलर, जो हम कहते हैं अमेरिका का हेजेमनी होने लगा. लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हो गया, ये मल्टीपोलर के रूप में अमेरिका, चाइना, देन अब तो इंडिया भी, देन जो है अगर आप देख लीजिए रशिया, ठीक, जो उसके बाद अगर आप जापान, जर्मनी. तो दैट मीन्स कि वर्ल्ड ऑर्डर भी क्या हुआ है, आपका चेंज हुआ है. वर्ल्ड ऑर्डर भी आपका क्या हुआ है, चेंज हुआ. वर्ल्ड ऑर्डर भी आपका चेंज हुआ है. सो चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑर्डर, बेसिकली द वर्ल्ड हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस, okay, since 1945, and the new realities need to be reflected in the permanent membership. Okay, and then misuse of veto power, जो वीटो पावर का मिसयूज करना खास करके चाइना के द्वारा, अगर इंडिया का इशू कुछ आ जाए तो, ठीक है. सो वीटो पावर करंटली जो है सिर्फ 5 जो परमानेंट मेंबर्स है उनके पास वीटो पावर है. अगर कोई भी परमानेंट मेंबर किसी भी इशू पे अगर वीटो लगा दिया तो डिसीजन हो ही नहीं सकता. ओके, तो कहते हैं ना कि करंटली ओनली द 5 परमानेंट मेंबर होल्ड वीटो पावर एंड थ्रू इट्स यूज हैव स्टॉल्ड एक्शन इन द काउंसिल to address global challenges and conflicts such as in यूक्रेन, रशिया यूक्रेन का देख लीजिए, गाजा के अगर आप बात कर लीजिए, इजराइल, जो उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिलिस्तीन का इशू देख लीजिए. एंड बेसिकली जो रिमेनिंग 10 मेंबर्स है जो आपका परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी होते हैं 2 साल के लिए, उनके पास क्या है, वीटो पावर है ही नहीं. So the remaining 10 nations in the council are elected to sit as non-permanent member for 2-year terms and do not have veto power. Then legitimacy, legitimacy. अब लेजिटिमेसी की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली द यू कैन से disproportionate power held by the 5 permanent members, particularly their veto power, lead to a perception of unfairness and lack of legitimacy. अगर कोई इशू वर्ल्ड का है और कोई सिर्फ एक कंट्री का चाह रही है कि ये चीजें ना हो, तो ये लेजिटिमेसी कहां से होगा. ये तो हम लोग कहते हैं ना कि लैक ऑफ लेजिटिमेसी हो जाएगा. ओके, सो ये ध्यान में रखना है. सो व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, करंट कंपोजिशन, इनएबिलिटी टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, चेंजेस इन वर्ल्ड ऑर्डर, वीटो पावर, लेजिटिमेसी. ओके, एंड नाउ हियर इज अ वन क्वेश्चन. ओके, हियर इज अ वन क्वेश्चन इज राइट वर्ड कि व्हाई शुड इंडिया गेट परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. एक समय में इंडिया को ऑफर किया गया, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे चाइना को दे दिया. ठीक है, हाँ, यही कहा जाता है. So why should India get permanent membership? We'll have to understand. हमें जानना चाहिए कि इंडिया को क्यों परमानेंट मेंबरशिप जो है आपको मिलना चाहिए. ये मेंस के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है ना. सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई इंडिया को क्यों मिलना चाहिए. तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, कि बेसिकली इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. 18% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन. और आप सिर्फ अगर 1/5 अगर एग्जांपल ले, पूरे वर्ल्ड का 1/5% जो इंडिया में है और उसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो कैसे काम होगा भाई. ओके, so basically such demographic significance warrants proportional representation in global decision making bodies like the United Nations Security Council. So first point what, the global population and representation. तो पहला क्या है, इंडिया का पॉपुलेशन.
अगर इंडिया को ही परमानेंट मेंबर्स नहीं बनाओगे तो इंडिया भी तो एक मेजर जो कहते हैं की प्लेयर है, ठीक है। वर्ल्ड का मैंने एग्जांपल दिया कि 18% जो आपका जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है वर्ल्ड का, तो इंडिया को तो ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए, ठीक है। देन इकोनॉमिक पावर हाउस, समझा तो थोड़ा सा। अभी हमारे इंडिया ने $4 ट्रिलियन जो है पास किया है, ओके। हमारा टारगेट है कि 2030 तक जो है हम लोग क्या हो जाए, आपका 5 ट्रिलियन, ओके। तो इकोनॉमिक पावर हाउस, बेसिकली इंडिया हैज इमर्ज एज अ मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स and ranking among the top economies by GDP, okay, nominal, okay, and also according to purchasing power parity। जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। So its economic strength contributes significantly to global stability and development, and which align the United Nations Security Council mandate to maintain international peace and security। So इंडिया क्या भाई एक टॉप इकोनॉमिक कंट्रीज है, इकोनॉमिक पावर हाउस है इंडिया। और अभी इंडिया तो बढ़ ही रहा है, और धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे डेवलप कंट्री जो है उनका जो इतना ग्रोथ नहीं होता है, डेवलपिंग कंट्री का ग्रोथ ज्यादा होता है। इंडिया उसमें से एक मेजर रोल जो है प्ले करता है, और इंडिया का इकोनॉमी भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। देन आफ्टर दैट कमिटमेंट टू पीस कीपिंग, हमेशा मैंने बताया ना, इंडिया 1948 से अभी तक आपका पीस कीपिंग वर्ल्ड में आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके। कमिटमेंट कमिटमेंट टू पीस कीपिंग, commitment to peacekeeping, okay। India has been basically one of the largest contributor to United Nations a peacekeeping mission, and demonstrating its commitment to global peace and security। And I also told you about our, you can say, external affair minister statement, India believes in Vasudhaiv Kutumbakam, that means whole world is one family, okay। And then after that, next, strategic importance, strategic importance, strategic importance what, बेसिकली कि अगर हम बात करेंगे ना कि जियोपॉलिटिकल जो है इंडिया का साउथ एशिया में, अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो इंडिया का जो जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है साउथ एशिया में, और उसका जो बॉर्डर इंडो पैसिफिक रीजन से भी लगता है, तो स्ट्रैटेजिकली इंडिया का जो इंपोर्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। So it influence extend beyond regional boundaries and making it crucial in addressing global security challenges such as terrorism, climate change, maritime security, okay। तो इंडिया के स्ट्रेटेजिकली लोकेशन जो आप देखो इंडो पैसिफिक रीजन वाला, ठीक है। एंड देन मोस्ट इंपोर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अभी समझा देता हूं मैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, democratic values means what, as the world's largest democracy, India uphold principle of pluralism, tolerance, inclusivity, and which are fundamental to the United Nations ethos ethics। You'll have to understand कि इंडिया ने क्या किया भाई, इंडिया ने जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसे बनाए रखा है। जो इंडिया ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसे बनाए रखा है। इंडिया में प्लुरलिज्म है, टॉलरेंस है, इंक्लूसिविटी है, और यही सारे फंडामेंटल्स भी तो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इथोस जो हम बात करते हैं। एंड देन सपोर्ट फ्रॉम मेंबर स्टेट्स, सपोर्ट फ्रॉम मेंबर स्टेट। चाइना को छोड़ते थे सब सपोर्ट करता है, ठीक है। कि बेसिकली इंडिया का जो हम लोग कहते हैं ना, जो जितने भी यूनाइटेड नेशन, जितने भी नहीं, ज्यादातर कंट्री जो हैं वो आपके इंडिया का एक परमानेंट सीट चाहती है और सपोर्ट भी करती है, ठीक है। सो अगर आप जर्मनी की बात करिए, जापान की बात करिए, ठीक, यहाँ तक कि अमेरिका भी, यूनाइटेड किंगडम भी, ये सब सपोर्ट करते हैं। जब सपोर्ट कर रहे हैं बड़े बड़े कंट्री, परमानेंट मेंबर रशिया, ठीक है, तो क्यों नहीं इंडिया को मिलना चाहिए। सो दीज आर द रीजंस, ओके, कि इंडिया को क्यों मिलना चाहिए आपका परमानेंट मेंबरशिप जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। हमारा पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेशन, हमारा इकोनॉमी, हमारा कमिटमेंट जो पीस कीपिंग को लेकर के, हमारा स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है, हम जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो है मानते हैं, हमारा जो हमारे पास सपोर्ट है मेंबर स्टेट से, ठीक है। नाउ एक चीज ये है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो
आपका रिफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसका कुछ रीजन है। दैट मीन्स देयर इज अ लिमिटेशन इंट्रोड्यूसिंग द रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो अगर लिमिटेशन की बात करेंगे, वीटो पावर ऑफ परमानेंट मेंबर, कि एनी रिफॉर्म टू द कंपोजिशन और वर्किंग मेथड्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ 5 परमानेंट मेंबर। So these countries have divergent interest and are, you can say, reluctant to support changes that could diminish their influence within the council। उनको डर लगता है कि हमारा पावर है ना, 5 कंट्री है, उनके पास पावर है, अब पावर कोई थोड़ी देना चाहता है, ओके, बांटना भी नहीं चाहता है, शेयर भी नहीं करना चाहता है। सो एक रीजन ये हो जाएगा। रीजनल डायनेमिक्स, बेसिकली रीजनल राइवलरीज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन complicate efforts to the reforms, okay, the council। देन जो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस, कि amending the United Nations Charter to enact reform requires a lengthy and complex process and involving, you can say na, ratification by a significant number of member states and making it difficult to enact substantive reforms। बहुत लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एंड देन चाइनीज ऑपोजिशन, चाइना बीइंग अ परमानेंट मेंबर ब्लॉक्स द ग्रोथ ऑफ इंडिया बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर, जो मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द वे फॉर हेड, क्या होना चाहिए, क्या आगे का रास्ता क्या होना चाहिए भाई, आगे की राह, कि बेसिकली एक ये इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट both important that both the permanent and non-permanent member, okay, membership be representative of the world as it is today, not the world as it extend in the wake of the second world war। that means क्या, हमारा जो समय है, अभी की जो जरूरत है, उस हिसाब से हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या कहते हैं, आकार होना चाहिए, साइज होना चाहिए, ठीक है। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी जरूरत है, ताकि उनका रिलेवेंस बना रहे, उसकी लेजिटिमेसी बना रहे, उसका इफेक्टिवनेस बना रहे, और ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है, खास करके 21st सेंचुरी का, उसको टैकल कर सके। अगर हमें इन सारे चीजों को रिफॉर्म करना है तो हमें कंसेंसस की भी जरूरत है, कंसेंसस होना चाहिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स के बीच में, ठीक, ताकि क्या हो सके, इस रिफॉर्म को जो है किया जा सके। ओके, आई होप सो कि दिस टॉपिक विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई हैव कवर दिस टॉपिक। एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें पूरा डिटेल में इस टॉपिक को मैंने कवर करवा दिया, ओके। Now we'll have to move ahead and we'll have to discuss about the next thing, that is India China look forward to stabilize ties। ठीक है, इंडिया चाइना क्या कर रहा है, आगे की ओर देख रहे हैं, ताकि हमारा जो संबंध है और मजबूत हो सके। So again this topic is related to what, General Studies paper 2, General Studies paper 2, please keep in the mind। And which portion, again IR, international relation। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ भाई, इसके पीछे एक रीजन है कि इंडियन जो डेलीगेशन है, ठीक है, वो डिस्कस किया है और डिस्कशन चल रहा है किसको लेकर के, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन विद चाइनीज ऑफिशियल ड्यूरिंग द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन बॉर्डर अफेयर्स। इंडिया और चाइना के बीच में आपका क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, किससे रिलेटेड, बॉर्डर अफेयर से रिलेटेड। तो वहीं पे ये जो आपका इंडियन डेलीगेशन ने चाइनीज ऑफिसर के साथ आपका क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन जो है वो उसके लेकर के आपका क्या क्या है, डिस्कशन किया है। सो क्या है हाइलाइट्स, थोड़ा इसको देख लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। बेसिकली ये जो मीटिंग था वो एक हिस्सा था दोनों साइड्स को, किस चीज के लिए, जो हमारा बायलैटरल रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। सो द मीटिंग वाज पार्ट ऑफ एफर्ट्स बाय द टू साइड्स इंडिया एंड चाइना टू नॉर्मलाइज बायलैटरल रिलेशन, यानी कि हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके, उसको अच्छा किया जा सके, बायलैटरल रिलेशन, ओके। देन उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि इट ऑल्सो केम इन द वीक ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's recent remark about इंडिया चाइना कोऑपरेशन बीइंग एसेंशियल फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि इंडिया और चाइना का रिलेशन अगर अच्छा होगा तो ग्लोबल पीस भी बना रहेगा, ग्लोबल प्रोस्पेरिटी भी बना रहेगा और ग्लोबल डेवलपमेंट भी होता रहेगा, ओके। सो इसके लिए एंड sir, US is the permanent member of United Nations, but still there is a war between Russia and US. Can US take any step? नहीं, देखिए, of course रसिया भी है और अमेरिका भी है, क्या है, both are you can say permanent member, but there is no war between America and Russia. There is a war between you can say Ukraine and Russia, ठीक है। तो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चाहेगी तो क्यों नहीं रुक सकता है,
ऑफकोर्स रुक सकता है वॉर, ठीक है। इसलिए तो अभी अमेरिका भी तो कोशिश कर रहा है, जो आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी बुलाया था, उसको भी बोला आप वॉर समाप्त करो, ठीक है। और ऑफकोर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो आपका स्टेप ले सकती है लेकिन ले नहीं पा रही है, तभी तो मैंने बताया इनइफेक्टिवनेस हो गया है, उनकी लेजिटिमेसी नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रिफॉर्म्स। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। हाँ, सो की हाइलाइट्स की बात कर रहे थे कि आपका क्या दोनों साइड जो है, आप इंडिया चाइना कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो नॉर्मल जो है बायलैटरल रिलेशन हो सके। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि इंडिया और चाइना का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है ताकि ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी रहे। एंड इंडिया एंड चाइना जो है वो आपके कहते हैं ना अपने जो संबंधों को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है उसको रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है उसको चाइना ने परमिशन दिया है, ठीक। सो बेसिकली कि दोनों साइड्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो डायलॉग के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आपका क्या हो सके, नॉर्मल रिलेशन हो सके, ठीक है। और स्टेबलाइज रिलेशन हो सके, स्टेबल रिलेशन। अब थोड़ा सा हम लोग को जो डिस्कस करना है कि 2025 जो है वो क्या है। इंडिया और चाइना का रिलेशन का 75 ईयर्स है, इंडिया और चाइना के रिलेशन का ये 75 ईयर्स है। सो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, खास करके डिप्लोमेटिक रिलेशन की अगर बात करेंगे तो क्यों मैं बोला 75 ईयर्स, तो इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जो पंसिल एग्रीमेंट था, ठीक, जो पंसिल एग्रीमेंट जो था वो आपका 1954 में बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो है साइन हुआ था, ठीक है। पंसिल एग्रीमेंट कब, 1954 में। सो इस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ओके, पहला क्या था, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। दूसरा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। सेकंड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। नॉन इंटरफेरेंस। ओके, नॉन इंटरफेरेंस, प्लीज ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो 1954 में आपका क्या हुआ कि पंसिल एग्रीमेंट जो है साइन किया गया, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो हम लोग कहते हैं हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना वो आपका 1954 से जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ। और जो कैसे स्टार्ट हुआ तो प्लीज ध्यान में रखिएगा कि पंसिल एग्रीमेंट से। तो पंसिल एग्रीमेंट में 5 चीजें थी, मैं आपको बता देता हूँ। जो 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ओके, सो पंसिल एग्रीमेंट के लिए एक हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि पंसिल एग्रीमेंट इज आल्सो नोन एज 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। So peaceful coexistence या Pencil Agreement is a set of principles signed by India and China in 1954. Why? To govern their relation, focusing on mutual respects. Okay, अगर आपको मैं बता दूं तो पहला जो है आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स, पहले ध्यान में रखिएगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ओके, देन आफ्टर दैट जो अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहते हैं नन एग्रेशन, नन इंटरफेरेंस, नन एग्रेशन, नन इंटरफेरेंस, नन इंटरफेरेंस, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गया, देन नन एग्रेशन, नन इंटरफेरेंस। ओके, देन आफ्टर दैट इक्वालिटी, इक्वालिटी। एंड देन जो है एक और आपका आएगा पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये भी हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि पंसिल एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था किसके बीच, इंडिया और चाइना के बीच। कब हुआ था, 1954 में जो है आपका हुआ था। कब हुआ था, 1954 में जो है आपका हुआ था, ठीक है। और ये हमारे पंसिल एग्रीमेंट जो है अभी भी हमारे इंडिया फॉरेन पॉलिसी का एक बेस है। क्या है, ये एक आपका बेस है। सो प्लीज कीप इन द माइंड, ये जो साइन हुआ था वो 29 अप्रैल, ओके, 29 अप्रैल 1954 को, 1954 को किसके बीच, इंडिया और चाइना के बीच। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो पंसिल एग्रीमेंट हम लोग ने जो है थोड़ा सा डिस्कस जो है किया है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 5 चीजें जरूर ध्यान में रखिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंफेरेंस,
इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो 5 चीजें: म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो उस टाइम जो जवाहरलाल नेहरू और जो इनलाई थे, ठीक है, उनके बीच जो है ये आपका हुआ था। तो इन सारी चीजों को अगर माइंड में रहेंगे तो ये 5 चीजें अभी भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का बेस है, ठीक है। देन आफ्टर दैट जो, हाँ, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में अपना एक हिस्टोरिकल टेंशन रहा ही है कि आप 1954 में क्या करते हो, जो 5 प्रिंसिपल साइन करते हो पंचशील, लेकिन 1962 में जो आपका क्या हो जाता है, चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। ओके, सो हिस्टोरिकल टेंशन रहा है 1962 के सिनो इंडो जो वॉर हुआ था, ठीक, और उसी और खास करके जो गलवान वैली वाला, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के अभी भी बहुत सारा जो है आपका जो कहते हैं कि डिस्टर्बेंस रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। सो इंडिया ने भी क्या किया, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को जो है आपका रिस्ट्रिक्ट किया, बहुत सारे ऐप जो है उसको बैन किया, ठीक है, बहुत फ्लाइट जो है वो सस्पेंड कर दिया था चाइना के लिए, ठीक। देन आफ्टर दैट जो ट्रेड रिलेशन की अगर बात करेंगे कि इन 2024 चाइना सरपास द यूएस एंड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इंपोर्ट्स एक्सीडिंग $100 बिलियन। चाइना के ही गुड्स तो ऑलमोस्ट अपने इंडिया में मिलता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए, चाहे टॉयज की बात करिए, चाहे मोबाइल, पहले तो मोबाइल का भी बहुत बड़ा था, ठीक है। लेकिन जो हम लोग कहते हैं टेंशन कितना भी रहा हो, लेकिन ये ट्रेड जो है आपका चलता रहा। अभी हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन मैकेनिज्म भी रहा है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू एफर्ट्स टू मैनेज बॉर्डर डिस्प्यूट्स। कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है क्या करते हैं, दोनों देश को कैसे नॉर्मल रिलेशन हो सके, स्टेबल रिलेशन हो सके, उसके ऊपर वो डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है कि 2024 में क्या आपका डिसएंगेजमेंट की बात जो है हुई थी, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे होगा, कि बोथ कंट्री अनाउंस सक्सेसफुल डिसएंगेजमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख। ओके, so now we'll have to understand what are the key areas of concern in India China relation। इंडिया और चाइना के रिलेशन में की एरियाज क्या क्या रहा है, आपको तो पक्का पता होगा, नहीं पता होगा आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, सो जो अगर आप देखोगे कि जो की टेंशन, सबसे पहले तो हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट व्हाट बॉर्डर डिस्प्यूट, प्लीज कीप इन द माइंड व्हाट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। Basically, ongoing border tension also we can say the unresolved border disputes span over 2,000 miles and marked by frequent clashes. Just like incident जो हुआ था डोकलाम में 2017 में, गलवान वैली 2020 में, और फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर के, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के जो चाइना बात करता है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, ये जो मैकमोहन लाइन है, रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड लाइन, ठीक, यही जो ये है आपका सबसे बड़ा टेंशन है, ये डिस्प्यूट। चाइना जो है मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है, और इंडिया कहता नहीं मैकमोहन लाइन ही हमारा बॉर्डर है, ठीक है, मैकमोहन लाइन ही हमारा बॉर्डर है। तो आप देखो नामकाचू जो यहाँ से, ठीक, आप ये अरुणाचल प्रदेश का ये पूरा जो एरिया आप दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये जो दिमांग वैली में, ठीक, आपका ये जो एक सिंपल याद रखिए कि बॉर्डर टेंशन रहा है, ठीक है। देन जो, हाँ, टेंशन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी रहा है। सो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के रहा है कि बोथ कंट्रीज हैव heavily fortified the border with roads, railways and airstrips for rapid troop mobilization। देन चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है, ये भी टेंशन है, जो आपका अभी देखेंगे बलूचिस्तान से जो निकलता है, ठीक है, इंडिया कहता है ये हमारा पार्ट है, ठीक। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कि इंडिया हैज एक्सप्रेस यू कैन से ना एक्सप्रेस reservation about China Belt and Road Initiative, especially regarding the China-Pakistan economic corridor, which passes through the territory of India. Then after that, जो tension है trade imbalance, इंडिया का एक्सपोर्ट कम है, चाइना का एक्सपोर्ट ज्यादा है, ओके, कि while politically desirable, reducing trade dependency is complicated by China economic influence and India's need for foreign investments, okay. Then China's growing presence in the Indian Ocean region,
जो इंडियन ओशियन रीजन में चाइना जो है, ओके, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो पॉलिसी है चाइना का, ठीक, उससे इंडिया को इंडियन ओशियन में घेरने की कोशिश करता है। बांग्लादेश में जो है आपका पोर्ट बना करके, श्रीलंका में पोर्ट बना करके, मालदीव की अगर बात करेंगे, ओके। सो बेसिकली कि श्रीलंका, चाइना's presence at Hambantota port and investment in an oil refinery raised concern in India. Then in Nepal, China investment in infrastructure just like Pokhara airport challenges India's strategic position. Then Bangladesh, uh, basically China's growing influence, including loan agreements, threatens India's regional influence. Then in Myanmar, China deepening ties with the Myanmar junta, okay, including the China-Myanmar economic corridor, and strengthen its presence in India's backyard. Okay, so ये ध्यान में रखना है. So what are the India's efforts to address these concern? ये जो concern मैंने बताया है आपका border, military infrastructure, belt and road initiative, trade imbalances, चाइना का ग्रोइंग presence हो इंडियन ओशियन रीजन में, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट, नेपाल में इन्वेस्टमेंट, बांग्लादेश, म्यांमार, इस सबको टैकल करने के लिए इंडिया क्या एफर्ट कर रही है, विल हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सो फर्स्ट इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप. मैं आपको बता ही देता हूं कि क्या क्या हो रहा है कि इंडिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप, so समझते हैं what defense partnership, just like India is trying to strengthen its defense ties with France, Germany, Spain, okay, and expanding naval alliance in Southeast Asia, just like क्वाड की भी बात कर सकते हैं हम लोग. ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वाडी है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, quadrilateral security dialogue. Okay, so Quad basically India shift towards the US and its allies to counter China's growing influence. तो क्वाड में आपका इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है. ओके, देन इंडिया इज आल्सो फोकसिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी. ओके, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की इंडिया हैज प्रायोरिटाइज मैरीटाइम सिक्योरिटी. ये अपने नेवल जो कैपेबिलिटीज है, नेवी का कैपेबिलिटीज है, वॉरशिप की बात करिए, इस सबको इंडिया जो है मॉडर्नाइज कर रहा है और डेवलप भी कर रहा है, और अपना जो डिफेंस टाइज जो है अमेरिका के साथ, जापान के साथ और स्ट्रॉन्ग कर रहा है. एंड काउंटरिंग द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, इंडिया काउंटर कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स. इंडिया ने ज्वाइन भी किया, क्या ज्वाइन किया, अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर टू काउंटर चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स. इसके ऊपर भी वीडियो करंट अफेयर के किसी न किसी सेशन में मैंने बनाया था, मतलब डिस्कस किया था. इंडिया जो ट्रेड रिलेशन की भी बात करें, इंडिया सीक्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइनीज गुड्स, especially in electronics and renewable energy. Okay, we'll have to understand. Now let's move ahead. What should be the way of ahead? क्या होना चाहिए आगे के रास्ता? कि सबसे पहला जो जरूरत है होगा मेरे हिसाब से कि बॉर्डर इशू को एड्रेस किया जाए. दोनों कंट्री साथ में मिल करके बैठे, ठीक है, और जो मिलिट्री एफर्ट से, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से, खास करके जो आपका एड्रेस बॉर्डर इशू है उसको जो है क्या करें, दूर करें. अभी रिसेंट डेवलपमेंट भी हुआ था देवसांग और देमचोक को लेकर के, ठीक है, जो एलएसी है, ठीक, उसको लेकर के. एंड देन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होना चाहिए कि सस्टेनिंग ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग इज अ की, एंड इंडिया शुड स्ट्रेंथन बायलैटरल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म and actively engage through regional, okay, and multilateral platform such as BRICS, Shanghai Cooperation Organization, and others to foster mutual understanding and strategic stability. Okay, please keep in the mind. Then okay, now let's move ahead and let's discuss about the next topic. So next topic is related to पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिकमेंडेशन फॉर जीएसटी रिजीम. ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको करंट अफेयर का जो चीजें वो बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद पढ़िएगा, ठीक है, कि ये टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 3 से है कि हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी ने रिकमेंड किया है सिंप्लीफाइड गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजीम, जो किसमें, अपने 90th रिपोर्ट में, अपने जो है 90th रिपोर्ट में, ठीक है. तो प्लीज एक बार इसे आप देख लीजिएगा. और देन जो है थोड़ा सा मैं आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बता दूं, बाकी चीजें इसमें मेंशन है. तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर बनती है, कैग के रिपोर्ट के ऊपर. अगर डेली करंट अफेयर क्लास लोगे तो हर एक चीजें कोरिलेट होता रहता है. ओके,
सो कैके कमेटी की रिपोर्ट पे जो है, सॉरी कैके रिपोर्ट पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो आपका क्या होती है, सेटअप जो है होती है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये जो है आपका एक रूल 308 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा उस पे बनती है, उससे बनती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। इस जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर बात करेंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा। ओके। एंड जो है ये आपका हर एक साल जो है इलेक्टेड होते हैं, एनुअली होते हैं। किसके द्वारा? स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। जो चेयरपर्सन जो होते हैं, यूजुअली ट्रेडिशन रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी के होंगे, ना कि रूलिंग पार्टी के। ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है? एग्जामिन ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, scrutinize public expenditure to ensure it is not extravagant or irregular, ensure accountability of the executive to the legislature, and works in tandem with CAG to maintain fiscal discipline and you can say कि transparency. Okay. बाकी CSAT क्या है? CSAT बोलो। बाकी जो जीएसटी क्या है वो मैंने आपको इसमें कवर कर दिया। बाकी जो हम लोग कहते हैं ना कि आपका जब इकोनॉमी का, वहां पे भी हम लोग जो है क्या करेंगे, आपका जो डिस्कस करेंगे सभी चीजों के बारे में, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान में रखिएगा। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी पहली बार जो है ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है ये 1921 में जो है आपका सेटअप हुआ था। 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है, जिसे हम मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। प्लीज कीप इन द माइंड। आई होप शो कि ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए इजी रहेगा और आप भी जो है इन सारी चीजों को अच्छे से समझिएगा कि पहली बार जो है जीएसटी जो है वो आपका प्रपोज हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, ठीक। लेकिन इसे 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है पास करके जो है आपका जो हम लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है आपका दिया गया। ऑफिशियली ये जो लॉन्च हुआ था हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2017 को, उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, ठीक है। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को समाप्त करके सिर्फ एक जीएसटी जो है कर दिया है, ठीक। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर जीएसटी में आप देखिए 0%, 5%, 12%, 18%, 28% का जो आपका टैक्स जो है लगता है। जीएसटी के अंदर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आता है, ओके। एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आता है। तो ये इकोनॉमी का टॉपिक रहेगा, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा। और प्लीज आप लोग करंट अफेयर का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, एंड देन विल कनेक्ट इन अपकमिंग सेशन। इफ यू फेस एनी हर्डल चैलेंजेस यू कैन कमेंट। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक करिएगा और बाकी शेयर करिएगा और डेली बेसिस पे करंट अफेयर का सेशन लेते रहिएगा। थैंक यू सो मच अनामिका, ऑलवेज वेलकम, मे गॉड ब्लेस यू, एंड विल कनेक्ट इन अपकमिंग सेशन। बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू।